اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز خواتین و حضرات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو ویلکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 208 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے پورے، ولا، اور نہ، تتبعو، چلو، خطواتی، قدموں، الشیطان، شیطان کے، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول سمجھ لیں، آپ کو آیت کی بخوبی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے۔ ایمان لانے سے قبل یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، پچھلی آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد یہ دین موسوی پر بھی کاربند رہے، یعنی انہوں نے دین موسوی کی تابع داری کو چھوڑا نہیں۔ دین موسوی کے جو قوانین تھے ان کے اوپر بھی اپنے طور پر یہ عمل پیرا تھے۔ کس طرح سے عمل پیرا تھے، اب اس بات کو سمجھیے گا۔ دین موسوی کے اندر ہفتے والے دن شکار ممنوع رہا۔ ہفتے کی بڑی تعظیم ہوتی تھی اور ہفتے کے دن شکار پر پابندی تھی۔ یہ واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ وہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہ پکڑیں، تو انہوں نے پکڑ لیں، تو انہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی جس کے اوپر انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک اور بات، دین موسوی کے اندر، تورات کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر ایک اور بات بھی تھی، ایک اور قانون تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے اونٹ کو حلال نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ جب مسلمان ہو گئے تو یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ہفتے کی تعظیم بھی کرتے تھے، ہفتے کے دن شکار وغیرہ سے اجتناب کرتے تھے۔ اپنے طور پر یہ سمجھتے یہ تھے کہ اسلام کے اندر ہفتے والے دن شکار کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، یعنی اگر میں ہفتے کے دن شکار نہیں کرتا تو اس سے نہ اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہ دین موسوی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ اونٹ کا گوشت نہ کھا کر میں اسلام کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال تو ہے لیکن فرض تو نہیں ہے، لہٰذا میں نے فرض کو نہیں چھوڑا، اور اگر میں نہ کھاؤں تو اسلام کے اندر اس پر کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے چونکہ کھانا فرض نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی اس قلبی کیفیت کو بھانپتے ہوئے، حالانکہ یہ ان کے دل کا معاملہ تھا، کسی اور کو اس کی خبر نہیں تھی، اللہ پاک نے اس پر یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر آنا ہے تو پورے کا پورا آنا ہے، یعنی یہ نہیں چل سکتا کہ آدھا آدھا کفر ہو اور آدھا آدھا اسلام ہو، یا آدھا دین عیسوی ہو آدھا دین اسلام ہو۔
आधा दीन मूसवी हो और आधा दीन इस्लाम हो। ये निस्फ निस्फ नहीं चल सकता, हाफ हाफ नहीं चल सकता। ये कंप्लीट इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना होगा, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना होगा। अब अगर उसी वाक़े को मैं थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करूं कि अगर कोई शख्स ऊँट का गोश्त नहीं खाता, मसलन उसे उसकी तबीयत के मुवाफिक नहीं है, उसके मिजाज के मुवाफिक नहीं है, या उसे अच्छा नहीं लगता, तो इस्लाम के अंदर ये कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन दीन मूसवी की, शरीयत मूसवी की पैरवी करते हुए ना खाना ये बुरा है। आप इस पॉइंट को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बात समझने से ताल्लुक़ रखती है कि अगर शरीयत मूसवी की रियायत करते हुए, अगर शरीयत मूसवी पर अमल करते हुए, या किसी भी और दीन, शरीयत, किसी भी और मज़हब पर अमल करते हुए अगर कोई शख्स किसी चीज़ को इस्तेमाल में नहीं ला रहा, वो नहीं खा रहा, वो नहीं बरत रहा, इस्लाम के अंदर अगरचे वो काम फ़र्ज़ भी नहीं है, यानी ना करे तो इस्लाम के अंदर गुनाहगार भी नहीं होगा वो, लेकिन किसी और मज़हब की पैरवी करते हुए वो उस पर अमल पैरा है, उसके माइंड में, उसके जहन में, उसके शऊर में ये बात है कि चूँकि मैं उस पुराने दीन पर भी अमल करना चाहता हूँ, उस पर भी अमल हो जाए और इस पर भी अमल हो जाए, ये बात काबिल गिरफ्त है, ये बात काबिल मुआखज़ा है। इसी पर पकड़ हुई, इसी पर मुआखज़ा हुआ, इसी पर यह आयत नाज़िल हुई कि अब्दुल्लाह बिन सलाम, ये तरीक़ा कार नहीं चलेगा। अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को इस्लाम से खारिज भी नहीं किया, वो इस्लाम के अंदर थे। अल्लाह पाक ने फरमाया ए ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी जब तुमने इस्लाम के अंदर आना है तो फिर किसी और दीन को फॉलो नहीं करना, फिर किसी और मज़हब को, किसी और आसमानी किताब को, ना तौरात को, ना ज़बूर को, ना इंजील को फॉलो करना है। फिर फॉलो करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद को फॉलो करना है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास के अंदर भी इसकी मिसाल दी थी, बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर एक वक्त वो था कि जब किसी के मुसलमान होने का सबूत तब मिलता था, किसी के मुसलमान होने का एतबार तब किया जाता था, वो गाय का गोश्त खाता था। चूँकि हिंदुओं के यहाँ गाय का गोश्त खाना ममनू है, हराम है, वो नहीं पसंद करते। उनके यहाँ गाय का अदब है, गाय की ताज़ीम है, वो गाय को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। गाओ माता, माता का माना माँ, कि गाय जो है वो हमारी माँ है, तो माँ को हम कैसे ज़िबा करें। अब अगर कोई शख्स हिंदुओं के इस नज़रिए को फॉलो करते हुए गाय का गोश्त नहीं खाता तो वो गलत होगा, वो रॉन्ग होगा। उसका ये तर्ज अमल, उसकी ये सोच सरासर गुमराही पर मबनी होगी, जहालत और लाइल्मी पर मबनी होगी और काबिल गिरफ्त होगी उसकी ये सोच। हाँ, अगर वो वैसे गाय का गोश्त नहीं खाता, उसे अच्छा नहीं लगता और डॉक्टर ने मना कर दिया है, उसकी तबीयत के, उसके मिजाज के मुवाफिक है, उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं खाता, तो ये एक अलग मामला है। अल्लाह ताला के यहाँ इस पर कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि गाय का गोश्त खाना कोई फ़र्ज़ भी नहीं है, हलाल है, फ़र्ज़ नहीं है। आप उम्मीद है कि इस पॉइंट को अच्छी तरह से बखूबी समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ी सी इस आयत की मजमूई तौर पर तफसीर करते हैं। आज मिन हैसुल कौम, अगर हम अपने तर्ज़ अमल को देखें, अपने रवैये के अंदर हम गौर करें, अपने गिरबान में हम झांक के देखें, तो हमें ये पॉइंट समझने को मिलेगा कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं हैं। मिसाल के तौर पर हम हिंदुओं के तरीके भी अपना लेते हैं, हम सिखों के तरीके भी अपना लेते हैं, हम यहूदियों के तरीके भी अपना लेते हैं। हमारे यहाँ कई रस्में ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त यहूदियों के साथ है, जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त हिंदुओं के साथ है। अंग्रेज़ों के वो रवैये हैं, अंग्रेज़ों के वो तरीके हैं, हम लोगों ने फॉलो किए हुए हैं और हम कहलाते भी अपने आप को मुसलमान ही हैं। तो वो शख्स किस तरह से अपने आप को मुसलमान कहला सकता है कि जो नमाज भी पढ़ता है और वो काफरों के तरीके भी अपनाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुमने इस्लाम के अंदर आना है तो ये आधा आधा इस्लाम नहीं चलेगा, आधा इस्लाम आधा कुफ्र, आधा इस्लाम आधी यहूदियत, आधा इस्लाम
आधा हिंदुइज्म, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये कंप्लीट इस्लाम के बारे में हम कहते हैं, इस्लाम अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम की अपनी सियासियात है, इस्लाम की अपनी मुआशियात है, इस्लाम हमारी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल दस्तूर हयात है। इस्लाम के किसी भी खाने को, किसी भी गोशे को हम अपनी ज़िंदगी से तर्क नहीं कर सकते। हमने जो करना है इस्लाम के मुताबिक करना है। यानी हमारा कोई अगर एक भी रवैया, एक भी तरीका इस्लाम से हट कर हुआ तो इस पर हमारी पकड़ होगी, इस पर हमारी गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक ने इसीलिए आगे फरमा दिया, वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, और तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। इससे कबल जो मजमून आप सुन कर आए हैं वो मुनाफ़क़त का मजमून है। अगरचे इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने खिताब ईमान वालों को किया है, लेकिन ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है, मुनाफिकों का तरीका है कि मुनाफिक आधा आधा इस्लाम रख लेते हैं, आधा आधा कुफ्र रख लेते हैं। यानी अगर काफरों की तरफ से कोई मफाद मिला उसकी उनकी तरफ हो गया, और अगर कोई मुसलमानों की तरफ से फ़ायदा नज़र आया तो इनकी तरफ झुक गया। कभी मिलान इधर है, कभी मिलान उधर है, कभी इनसे मुलाकात है, कभी उनसे मुलाकात है। तो वो मुकम्मल तौर पर किसी तरफ भी नहीं है, वो दरमियान में लटके हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी नज़रिए को रद्द फरमाया कि ये जो दरमियान में लटकना है, कभी उधर कभी इधर, अल्लाह ताला को ये अदा पसंद नहीं है। आप अगर गौर फरमाएं, हम में से कितने मुसलमान ऐसे हैं जो क्लीन शेव को पसंद करते हैं, वो दाढ़ी को पसंद नहीं करते, दाढ़ी से उन्हें नफ़रत है। तो ये जो दाढ़ी से नफ़रत है ये अल्लाह ताला को नापसंद है, क्योंकि दाढ़ी अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुबारका है, दाढ़ी रखनी चाहिए। बाज़ लोग इस पर यह नज़रिया भी पेश करते हुए दिखाई देते हैं, वो कहते हैं जी देखें ना, इस्लाम के अंदर दाढ़ी है, दाढ़ी के अंदर तो इस्लाम नहीं है ना। चलो भाई मान ली, तुम्हारी बात मान ली, दाढ़ी के अंदर तो इस्लाम नहीं है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस्लाम के अंदर तो दाढ़ी है ना, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? तो किसी दाढ़ी वाले को नापसंद करना, दाढ़ी वाले से नफ़रत करना, इसी तरह अगर कोई शख्स इमामा शरीफ पहनता है उससे नफ़रत करना, कोई सर को ढांप के रखता है उससे नफ़रत करना कि ये क्या है, ये पुराने तरीके हैं, ये ख़त्म हो गए, सर से टोपी उतार दो, पगड़ी उतार दो, नंगे सर फिरा करो। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर कोई खातून है, कोई औरत है, कोई लड़की है, वो हिजाब करती है, पर्दा करती है, वो दुपट्टे का इंतज़ाम करती है, वो सर के बालों को ढांपती है, वो अपने पूरे जिस्म को छुपा के रखती है, अल्लाह ताला को तो ये पसंद है। लेकिन अगर हमारा मुआशरा टीज़ करना शुरू कर दे, तनकीद करना शुरू कर दे कि ये तुमने क्या कर लिया है, तुम कोई बूढ़ी हो गई हो, तुम तो जवान हो, अभी जवानी वाले काम करो, अपने बाल खोलो और उनको कंधों पे बिखेरो और अपनी जुल्फ़ों को लहराओ हवा के अंदर, ताकि पता चले लोगों को कि तुम कितनी हसीना हो। तो ये जो हमारे यहाँ तर्ज़ अमल है, आप शादी ब्याह का मौका देख लें, उस पर हम जो कुछ करते हैं। इसी तरह से आप अगर हमारे बाज़ारों को देख लें, हमारे शॉपिंग मॉल्स को देख लें, आप अगर हमारे स्कूलों को देख लें, हमारे कॉलेजेस को देख लें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, हमारे तालीमी इदारों को, तालीमी दरसगाहों को देख लें, हमारे अदालती सिस्टम को देख लें, आपको कहाँ कहाँ बेपर्दगी नज़र नहीं आएगी, फुहाशी और यानी नज़र नहीं आए, और हम अपने आप को कहलाते मुसलमान ही हैं। आप अगर देखें, एक शख्स जो है वो रिज़्क़ हराम कमा रहा है, अगर उसका बस चलता है वो मिलावट भी कर लेता है, वो कम तोलने को भी कोई गुनाह नहीं समझता, वो सूद भी लेता है, वो रिश्वत भी खाता है, वो झूठ भी बोलता है, वो बददियानती भी करता है, वो दगा भी करता है, वो फ्रॉड और मक्कारी और चालाकी से भी काम लेता है, वो हमसायों को तकलीफ़ भी पहुंचाता है, वो रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा नहीं करता। तो ये जो सारा तर्ज़ अमल है हमारा, ये इस्लाम के सरासर मुखालिफ है। अल्लाह पाक ने इसीलिए इरशाद फरमाया, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। शैतान के कदमों पर क्यों ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो इसी तरह से तुम्हारे ऊपर हमला करता है, अटैक करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें अपने जाल और फंदे के अंदर फंसाता है। कैसे कि वो तुम्हें कहता है कि तुम इस्लाम को रख लो, लेकिन इस्लाम को मुकम्मल ना रखो, थोड़ा सा इस्लाम रख लो, थोड़ा सा कुफ्र रख लो, थोड़ी सी यहूदियत रख लो, थोड़ा सा ईसाइयत को रख लो, थोड़ा सा बुत परस्ती को रख लो, भाई सारों के साथ चलो।
यही नजरिया पेश किया था अकबर ने, अकबर बादशाह ने, मुगल आज़म जिसको कहा जाता था, अकबर आज़म जिसे कहा जाता था, उसने यही नजरिया पेश किया था। इसके नजरिए का नाम था सुलह कुल। सबसे सुलह रखो, सबसे दोस्ती रखो, सबको अपना समझो, सारे ही ठीक हैं, सारे ही सही हैं, सारे ही हक पे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता सारे ही हक पे हैं। इस्लाम का तो आगाज ही ला से होता है। ला, आप गौर करें, ला क्या है? ला का माना है नहीं, इलाहा माबूद, हाकिम मददगार, महबूब मतलूब। कोई माबूद नहीं है, कोई महबूब नहीं है, कोई मददगार नहीं है सिवाय अल्लाह के। आप इसको देखें, ऐसे भी कलमा शरीफ ऐसे भी हो सकता था, अल्लाहु इलाहुन, अल्लाह माबूद है। अगर कलमा शरीफ ऐसे होता अल्लाह भी माबूद है तो भाई ठीक है, अल्लाह भी माबूद है, बाकी भी चीज़ें माबूद हो सकती हैं, बुत भी माबूद हो सकते हैं, पत्थर भी माबूद हो सकते हैं, दरख्त भी माबूद हो सकते हैं, चाँद सैयारे सूरज सितारे ये भी माबूद हो सकते हैं। भी ठीक है, तुम अल्लाह की पूजा करनी है अल्लाह की कर लो, पत्थरों की करनी है पत्थरों की कर लो, जो जी में आता है वो कर लो, सारा कुछ ही सही है, सब ही हलाल है। इस्लाम ने ये नहीं कहा। इस्लाम ने कहा ला, पहले ला का कुल्हाड़ा चलाओ, पहले ला की तलवार चलाओ, और ला की तलवार के साथ तमाम माबूदाने बातिला का सर कुचल के रख दो। किसी की इबादत ना करो, किसी से मोहब्बत ना करो, किसी का ऑर्डर ना मानो, किसी का हुक्म ना मानो। ला इलाहा ने सारे मसले हल कर दिए। कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई मददगार नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया शैतान तुम्हें हटाएगा, वो इस्लाम से हटाने के लिए यही तरीका इख्तियार करेगा कि तुम्हें यकदम इस्लाम से दूर नहीं करेगा। वो आहिस्ता 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 रफ्ता रफ्ता तुम्हें तुम्हारी जहन साजी करेगा, तुम्हें कन्विंस करेगा, तुम्हें माइल और कायल करेगा कि सारा कुछ ही इस्लाम का लेके न चलो। बाज़ पहलुओं के अंदर इस्लाम की बात मान लो, बाज़ पहलुओं के अंदर जो तुम्हारे मन में आता है उसकी बात मान लो। तो मन की मर्जी भी नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की मर्जी चलेगी। अल्लाह पाक ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 209 के अंदर इरशाद फरमाया फ़इन ज़ललतुम मिन बादी मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फ़इन, फिर अगर, ज़लल तुम फिसलने लगो, मिन बादी, इसके बाद, मा, जो, जाअतकुम, तुम्हारे पास आ चुकी हैं, अल बय्यिनातु, रोशन निशानियाँ, फ़अलमू, पस जान लो, अन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन, ज़बरदस्त है, हकीमुन, हिकमत वाला है। अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने तमाम यहूद को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, अगरचे उस वक्त जब ये आयत नाज़िल हुई तो इसका मुखातब यहूद भी थे, मुसलमान भी थे, मुनाफिकीन भी थे, सब इसका मुखातब थे। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम फिसलने लगो, इसके बाद कि जब कि तुम्हारे पास रोशन निशानियाँ आ चुकी हैं, रोशन दलीलें आ चुकी हैं, रोशन मोजज़ात आ चुके हैं, इस्लाम के हक होने के वाज़े दलाइल आ चुके हैं। अब अगर इस्लाम के वाज़े दलाइल आ जाने के बावजूद भी तुम फिर जाते हो, तुम फिसल जाते हो, तुम हट जाते हो, तुम अपने दीन को छोड़ जाते हो, कभी कभी अपने इस्लाम के ऊपर अमल करते हो और कभी कभी तुम अपने पुराने दीन के ऊपर अमल करते हो, ये है फिसलना। अगर तुम फिसल गए या तुम फिसलने लगे तो फिर जान लो अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, अल्लाह बड़ा गालिब है, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, फिर वो तुम्हें पकड़ेगा, फिर वो तुम्हारी गिरफ्त करेगा। आप अगर गौर फरमाएं, आप देखें, हमने ये मुल्क हासिल किया था इस्लाम के नाम पर, तो यहाँ कहाँ है इस्लाम, कहाँ है यहाँ पर इस्लाम? तो हमें अपने घरों के अंदर भी नज़र नहीं आता, हमारे अपने घरों के अंदर इस्लाम नज़र नहीं आता। इस्लाम को हमने देश निकाला दे दिया है, इस्लाम को हमने जला वतन कर दिया है, इस्लाम को हमने अपने ही वतन से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, अपने घरों से बाहर निकाल दिए। इस्लाम दस्तक देता है हमारे दरवाज़ों पर कि मैं आ जाऊं,
ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں جگہ نہیں ہے تمہاری، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے، اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی رسمیں نبھائیں گے، اسلام فالو ہو یا نہ ہو ہم اپنی رسمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارا اسلام سے ہٹ جانا ہے، اسلام سے پھسل جانا ہے، یہ تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، انتہائی مضر ہے، باعث ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب لا ریب کے ایک ایک لفظ کے اندر گہرا غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آیات بینات کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 209 تک گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔